Hello students, how are you? Hope you are fine there. This is an English book for class 7 and we are going to read lesson 1. Unit 1 Jamil is ashamed. Jamil शर्मिंदा है. Mr. Jamil had a red spotted handkerchief that he liked very much. मिस्टर जमील के पास सुर्ख धब्बों वाला रुमाल था जो उसे बहुत पसंद था. It was a big one with deep red spots all over it. ये एक बड़ा रुमाल था. सारे रुमाल पर गहरे सुर्ख रंग के धब्बे थे. मिस्टर जमील always wore it in his front coat pocket. मिस्टर जमील हमेशा उसे अपने कोट की सामने वाली जेब में रखता था. Where it stuck out a little so that everyone might see it. ये रुमाल जेब से थोड़ा सा बाहर निकला होता था ताकि हर कोई उसे देख सके. Now one morning as Mr. Jamil was going along the road, जब एक सुबह मिस्टर जमील सड़क पर जा रहा था, he wanted to sneeze into and it was not there. उसने छींक मारना चाही और रुमाल मौजूद नहीं था. मिस्टर जमील was so surprised that he forgot to sneeze, which was a pity, for he really liked a good sneeze. मिस्टर जमील इतना हैरान हुआ कि वो छींकना भूल गया, जो कि अफसोस की बात थी क्योंकि वो खुलकर छींकना चाहता था. He stood there feeling anxiously in all his pockets. वो वहाँ बेचैनी से खड़ा अपनी जेबों में देखता रहा. But it was not in any of them. लेकिन रुमाल किसी भी जेब में नहीं था. Somebody must have taken it, said Mr. Jamil. मिस्टर जमील ने कहा, ज़रूर किसी ने चुरा लिया होगा. Yes, हाँ. Somebody at the meeting I have just been to. किसी ने इस मीटिंग में जहाँ मैं गया था. Oh, how naughty of them. उन्होंने कितनी बुरी शरारत की. I will go straight back and see who's got it. मैं सीधा वापस जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि इसे किसने चुराया है. They will still be there talking. वो अभी वहाँ बातें कर रहे होंगे. So back Mr. Jamil went and told everybody at the meeting that he had lost his red spotted handkerchief. मिस्टर जमील वापस चला गया और मुलाकात के मकाम पर मौजूद हर शख्स से कहा कि उसका सुर्ख धब्बों वाला रुमाल गुम हो गया है. You lent it to Haris to wipe some spots off his coat, said Naeem. नईम ने कहा, आपने कोट के कुछ धब्बे साफ करने के लिए हारिस को दिया था. But I gave it back. लेकिन मैंने ये रुमाल वापस कर दिया था, said हारिस at once. And you also lent it to Hanif to wave to his aunt when she passed by the window, said Naeem. आपने हनीफ को भी दिया था कि अपनी खाला को जब वो खिड़की के पास से गुजर रही थी इशारा करे. But I gave it back. I know I did, said Hanif. He turned out his pockets and certainly there was no handkerchief there, and I lent it to you
Naeem, to polish your silver watch chain this morning, said Mr. Jamil. You must have kept it. Indeed, I did not, said Naeem. I put it back into your pocket myself. हनीफ ने कहा, लेकिन मैंने वापस कर दिया था, मुझे अच्छी तरह याद है। उसने अपनी जेबें उल्टाईं और यकीनन वहाँ रुमाल नहीं था। मिस्टर जमील ने कहा, नईम और मैंने तुझे आज सुबह दिया था अपनी घड़ी की चांदी की जंजीर को साफ़ करने के लिए। आपने ज़रूर उसे अपने पास रख लिया होगा। नईम ने कहा, दर हकीकत मैंने उसे नहीं रखा, मैंने खुद उसे आपकी जेब में डाला था। Did you lend it to anybody else? Yes, Jamil lent it to me to pop over my head when I went out in the sun to look for Javed, said Salim. I tied a knot in each corner, but I untied them when I came back and gave the hanky back to Jamil. क्या आपने रुमाल किसी और को दिया था? सलीम ने कहा। हाँ, जमील ने उसे मुझे सर पर ओढ़ने के लिए दिया था। जब मैं जावेद को ढूंढने धूप में बाहर गया था, मैंने हर कोने में एक गिरह दी थी। जब मैं वापस आया तो मैंने गिरहें खोल दी और रुमाल जावेद को वापस कर दिया। I know I did it. It's no use looking at me like that. Jamil, I have not got your handkerchief. Well, it's a very funny thing, said Mr. Jamil, feeling angry. I seem to have lent it to all of you this morning, and I have not got it myself. So one of you must have kept it. It's very mean of you. Very well, Mr. Jamil. We will all turn out our pockets and show you that we have not got it, said Hanif, and everyone turned out his pockets for Jamil to see. मुझे याद है मैंने वापस किया था। जमील, इस तरह मेरी तरफ देखने का कोई फ़ायदा नहीं। मेरे पास आपका रुमाल नहीं है, मिस्टर जमील ने गुस्से से कहा। तो फिर ये बड़ी मज़ाहिया बात है। लगता है कि ये रुमाल आज सुबह मैंने आप में से हर एक को दिया था और ये मुझे नहीं मिला है। बस आप में से किसी एक ने उसे रख लिया होगा। ये तुम्हारी बहुत घटिया हरकत है, हनीफ ने कहा। बहुत अच्छा मिस्टर जमील, हम सब अपनी जेबें पलटेंगे और दिखाएंगे कि ये हमारे पास नहीं है। और हर शख्स ने जमील को दिखाने के लिए अपनी जेबें पलटी। There were some receipts, visiting cards, wallets and money, but no red spotted handkerchief. Now you turn out your pockets, Jamil, said Hanif. We will make quite sure you are not making all this fuss for nothing. इनमें कुछ रसीदें, तारफ़ी कार्ड, बटवे और रकम थी, लेकिन सुर्ख धब्बों वाला रुमाल नहीं था। हनीफ ने कहा, जमील, अब आप अपनी जेबें खाली करके दिखाएं। हम ये तसल्ली करेंगे कि आप बिला वजह ये हंगामा खड़ा नहीं कर रहे। So Mr. Jamil turned out his pockets, but there was no handkerchief there either. It's not a bit of use, said Mr. Jamil. One of you has my beautiful handkerchief, and it's very wrong of you. Now, Mr. Jamil, when you left the meeting, I know I saw your red handkerchief sticking out of your front coat pocket, said Salim. I just know I did. So if you took it away yourself, we could not have kept it. मिस्टर जमील ने अपनी जेबें खाली की, लेकिन उनमें भी रुमाल नहीं था। मिस्टर जमील ने कहा, इसका ज़रा भर फ़ायदा नहीं। आप में से किसी एक के पास मेरा खूबसूरत रुमाल है और ये आपकी बड़ी ज़्यादती है। सलीम ने कहा, हाँ मिस्टर जमील, जब आप मुलाकात से फ़ारिग हुए तो मुझे याद है कि मैंने आपका सुर्ख धब्बों वाला रुमाल
आपके कोट की सामने वाली जेब से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ देखा था। मुझे बिल्कुल याद है कि मैंने उसे देखा था, इसलिए अगर आप उसे खुद ले गए थे तो हम उसे कैसे चुरा सकते थे। Did you meet anyone on your way home? No, nobody, said Jamil. Tell us exactly what you did, said Hanif. Well said. Did you lend him your handkerchief? asked Naeem. No, of course not, said Jamil. What would a dog want a handkerchief for? To wave to the engine driver of the train or something. Don't be silly. क्या आप किसी से घर जाते हुए रास्ते में मिले थे? जमील ने जवाब दिया, नहीं, किसी से नहीं। हनीफ ने कहा, आप हमें सही सही बताएं कि आपने क्या किया था। जमील ने जवाब दिया, हाँ, मैं मुलाकात से फारिग हुआ तो सड़क पर पैदल चला। मैंने काले सर वाला एक कुत्ता देखा। नईम ने पूछा, क्या आपने उसे अपना रुमाल उधार दिया था? जमील ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, कुत्ते को रुमाल की क्या ज़रूरत। रेलगाड़ी के इंजन ड्राइवर या किसी और चीज़ को देखकर लहराने के लिए अहमकाना बातें न करो। Well, go on, said Hanif, and after a bit I saw a cow looking over a hedge, said Jamil. Did you lend her your handkerchief? asked Salim. Really, Salim, do you suppose I go about lending cows my handkerchief? said Mr. Jamil. I suppose you think she wanted to polish her shoes with it. Well, she did not. Go on. हनीफ ने कहा, हाँ, बात जारी रखो। जमील ने कहा, थोड़ी देर बाद मैं देखा कि एक गाय बाड़ के ऊपर से दूसरी तरफ देख रही है। सलीम ने पूछा, क्या आपने उसे रुमाल दिया? जमील ने कहा, क्या आप वाकई सोचते हैं मैं गायों को रुमाल उधार देता हूँ? मेरे ख्याल में आप सोचते हैं कि वो इस रुमाल से अपने जूते पॉलिश करना चाहती थी। अच्छा नहीं, हनीफ ने कहा, बात जारी रखो। What did you do next? asked Hanif. Well, let me see, said Mr. Jamil. Oh, I know. A car came suddenly round the corner and I had to jump quickly into the hedge and I fell over and hurt my knee very badly. Did you really? Poor old Mr. Jamil, said Hanif, for he knew how painful it was to fall down. Did your knee bleed? Oh, terribly, said Mr. Jamil. I had to bandage it. He suddenly stopped and went very red indeed. He did not finish what he was going to say. फिर आपने क्या किया? मिस्टर जमील ने कहा, अच्छा, मुझे सोचने दो। हाँ, मुझे याद है, एक कार अचानक कोने के पीछे से आई और मुझे जल्दी से बाड़ में छलांग लगाना पड़ी और मैं गिर गया और मेरा घुटना बुरी तरह ज़ख्मी हो गया। हनीफ ने कहा, क्या वाकई ऐसा हुआ? बेचारे बूढ़े मिस्टर जमील, क्योंकि उसे मालूम था कि नीचे गिरना कितना तकलीफ़दा था। क्या आपके घुटने से खून बहा? मिस्टर जमील ने कहा, वो बुरी तरह मुझे इस पर पट्टी बांधना पड़ी। वो बोलते बोलते अचानक रुक गया और उसका चेहरा वाकई बहुत सुर्ख हो गया। उसने अपनी बात भी मुकम्मल न की। Go on, said Naeem. Oh, that's all, said Mr. Jamil. Well, I don't think I will bother any more about my handkerchief. Goodbye, everyone. No, no, Mr. Jamil, don't go yet, said Naeem. And he held him by the arm. Let's see your poor hurt knee. नईम ने कहा, बात जारी रखो। मिस्टर जमील ने कहा, बस तमाम हो गई। हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि अब मुझे मज़ीद अपने रुमाल की फ़िक्र है। हर एक को खुदा हाफिज़, नईम ने कहा। नहीं नहीं मिस्टर जमील,
अभी न जाओ, और उसने उसे बाजू से पकड़ लिया। आओ आपका ज़ख्मी घुटना देखें। Oh, it's quite all right now, said Mr. Jamil. It might not be, said Naeem. We would better look and see if it wants bathing. Turn up your trouser leg, Jamil. So Jamil had to, and his knee was neatly bound up with. What do you think? Yes, his red spotted handkerchief. I don't wonder you feel ashamed of yourself, said Naeem sternly. मिस्टर जमील ने कहा, ये अब बिल्कुल ठीक है। नईम ने कहा, हो सकता है कि ये ठीक न हो, बेहतर है हम देखें कहीं इसे धोने की ज़रूरत तो नहीं। जमील, अपने पाजामे को टांग पर उल्टाओ। बस जमील को ऐसा करना पड़ा और उसका घुटना खूबसूरती से बंधा हुआ था। सोचो किससे? हाँ, उसके सुर्ख धब्बों वाले रुमाल से। नईम ने सख्ती से कहा, मेरा नहीं ख्याल आपको इस पर शर्मिंदगी है। कमिंग बैक हेयर एंड मेकिंग ऑल दैट फर्स्ट, व्हेन इफ ओनली यू वुड थॉट फॉर अ मोमेंट you have known quite well where your silly old handkerchief was all the time. I am sorry, said Mr. Jamil, and he went home feeling very much ashamed. He did not like to wear his handkerchief anymore, so now it is neatly folded in his drawer. Silly old Mr. Jamil, he did make a mistake, did not he? यहाँ वापस आकर ये सारा हंगामा खड़ा करना, जबकि आप एक लम्हे के लिए सोच लेते, आपको अच्छी तरह मालूम हो जाता कि आपका फजूल पुराना रुमाल इस सारे वक्त कहाँ था। मिस्टर जमील ने कहा, मुझे अफसोस है, और वो बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हुए घर गया। उसने मज़ीद अपना रुमाल लेना पसंद न किया। अब वो खूबसूरती से तह लगाकर उसके दराज में रखा हुआ है। खाली जहन बूढ़ा मिस्टर जमील, उसने वाकई ही गलती की क्या नहीं की। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारी इस लेसन यूनिट 1 की जो है रीडिंग कंप्लीट हुई, और अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और आप अपनी कॉपीज़ कंप्लीट करवा कर स्कूल में चेकिंग के लिए भेज दें। थैंक यू।